Bismillahirrahmanirrahim. Our nervous system comprises of two main systems. One of them is central nervous system that has two major organs, brain as well as spinal cord. Brain controls and coordinates and communicate all the functions not only of internal body but also develop a communication network to our external environment. The spinal cord assists the brain in conveying all the messages that brain sends or receives. The other part of our nervous system is peripheral nervous system. The peripheral nervous system comprises of all the nerves. These nerves, as you can see in the picture, are present throughout our body. All these are nerves that are present throughout our body, and these arises 12 pair of nerves arises from brain that are called cranial nerves, and 31 pair arises from spinal cord that are called spinal nerves. This huge and complex network of nerves actually act as a motorway, a road, a mean to communicate the messages from internal as well as from external environment to brain and to spinal cord. The traffic of messages is two-way, from brain to the body and from body to the brain as well as to spinal cord. In this way, the response is also two-way process, from brain to the body and from body to the spinal cord. Now the whole system, the whole organ system comprises of the main structure which is called neuron. These neurons are present throughout the nervous system, in the brain, in the spinal cord and in the nerves. So we can say that neurons are the functional as well as structural unit of nervous system. When we say it is the structural unit means it constitutes the central nervous system. The nervous system. आप इसकी एनालॉजी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज सेल से कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, इसी तरह तमाम नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से कॉन्स्टिट्यूट करता है. सो वी कैन से दैट एज द न्यूरॉन कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम, सो इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. And what does it mean when we say it is the functional unit? It means that all the processes taking place in the nervous system happens through these neurons. All the communication, all the control function takes place through these neurons. यहाँ हम बार बार एक लफ्ज का नाम ले रहे हैं, nerves. Nervous system consists of nerves and the nerves are made of neurons. What are these nerves actually? This is a nerve, a single nerve. As you can see, these are the neurons. When these neurons join together, more than one neuron join together, they make a nerve. So messages are conveyed in the form of nerves. Nerves, what are the nerves? Nerves are the collection of neurons. It is a nerve fiber. Nerves are also called nerve fibers. These nerves carry messages either from brain and from the body parts. And in our present lecture, we are going to discuss about the structure and the function and the types of nervous system. चलिए देखते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक हमें किस हद तक हेल्पफुल हो सकती है. न्यूरॉन्स हमारी टेक्स्ट बुक में, CSS की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे प्रेजेंट है.
और ये टॉपिक है 1.1.2। अब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि न्यूरॉन्स को हम नर्वस सिस्टम में क्यों स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए कि न्यूरॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है। ये आपके सामने एक सिंगल यूनिट है, सिंगल सेल ऑफ न्यूरॉन है। इट इज अ सिंगल सेल। इससे कुछ पार्ट्स हैं आपके सामने। द मेजर पार्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज द सेल बॉडी। It is similar to the cells of other cells in the body, present in the body. इस सेल बॉडी में भी वो सब कुछ मौजूद होगा जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। जैसा कि ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियंस अब प्रेजेंट होंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा इसमें गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी, गोल्गी बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, न्यूक्लियस टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एंड टू रेगुलेट द मैसेजेस दैट कम इनटू एंड गो आउट फ्रॉम द सेल। So cell body is the central working unit of a neuron. It is the first major part. अब आप छोटी छोटी सी ये प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक्सटेंशंस हैं सेल बॉडी की। ये प्रोजेक्शंस, स्मॉल प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब इन डेंड्राइट्स का क्या काम है, क्योंकि ये चारों तरफ फैली होती हैं, तो इनका काम ये है कि ये किसी भी मसल से सिग्नल को रिसीव करती हैं। दीज डेंड्राइट्स आर एक्चुअली अटैच टू अ मसल। or any body that can perceive the signal, that can receive the stimulus from the environment. So the function of dendrites is to receive the signals, receive the messages from the environment, not only from the muscles but from the other cells. They receive messages from the cells. जब तक डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव नहीं करेंगे, मैसेज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब आप एक देख रहे हैं कि ये एक लॉन्ग प्रोजेक्शन है सेल बॉडी की। डेंड्राइट्स भी सेल बॉडी के प्रोजेक्शन थे, और यहाँ से ये जो आप लॉन्ग पार्ट देख रहे हैं, ये भी सेल बॉडी की प्रोजेक्शन है। इट इज़ द लॉन्ग प्रोजेक्शन। तो ये लॉन्ग प्रोजेक्शन एक्सॉन कहलाती है, एक्सॉन। It is the third very important part of a neuron. What is the purpose of axon? It actually communicates and transfers the messages to other cells. As you can see, it also has small projections at its ends. These are called axon terminals. The axon terminals serves the purpose to transfer the messages to other neuron cells. These terminals are attached to other neurons. To which part guess? अब एक्सॉन के ये टर्मिनल्स अगले न्यूरॉन के किस पार्ट से प्रेजेंट होंगे? अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ ये प्रेजेंट होंगे। ये इनके साथ अटैच होंगे। इनका ये वाला सिरा इसके साथ नेक्स्ट न्यूरॉन का, अदर न्यूरॉन का डेंड्राइट इधर अटैच होगा। ये उसको अपना सिग्नल जो कि डेंड्राइट रिसीव करेंगे, डेंड्राइट से सिग्नल सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी उसे उस सिग्नल को या मैसेज को प्रोसेस करेगी और उसे एक्सॉन में ट्रांसफर कर देगी। एक्सॉन ट्रांसफर करेगा ये मैसेजेस अपने एक्सॉन टर्मिनल्स को। एक्सॉन टर्मिनल्स ये मैसेज एक गैप के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को ट्रांसफर कर देगा। इस तरह ये मैसेज की कम्युनिकेशन चलती रहती है। तो एक्सॉन टर्मिनल सर्व्स द पर्पस टू ट्रांसफर द मैसेज
to next neuron. And to which part of next neuron? The dendrite. Now you can see that there is a covering upon axon at small intervals. These coverings are called myelin sheath. Myelin sheath is the protective sheet that protects the message being communicated through axon. अब जो मैसेज सेल बॉडी आगे ट्रांसफ़र कर रही है उसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है ताकि वो डैमेज ना हो सके। अगर मैसेज जो कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक्सॉन टर्मिनल्स को, अगर वो किसी भी तरह से डैमेज हो जाता है तो हमारी कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी एंड टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट फेल हो जाएगी, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा और बॉडी या वो पार्ट टेम्परेली और परमानेंटली इन सम केसेस इनएक्टिव हो जाएगा। सो मैसेज की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और माइलिन शीट ये पर्पस सर्व करती है। इसके साथ साथ माइलिन शीट का एक और फंक्शन भी है कि वो मैसेज को स्पीड अप करती है, स्पीड अप द मैसेज। अब मैसेज को स्पीड अप करना कैसे होगा? ऑब्वियसली बात है कि जब मैसेज प्रोटेक्ट होगा, उसे कोई आउटसाइड हिंड्रेंस नहीं उसे मिलेगी, तो वो स्पीडीली ट्रांसफर किया जा सकेगा और टाइमली रिस्पांस जनरेट होगा। नर्वस सिस्टम में टाइमली रिस्पांस जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा सपोज करें कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक पत्थर आ जाता है। अगर नर्वस सिस्टम आपको टाइमली ना बताए कि आगे कोई हर्डल है, कोई हिंड्रेंस है, तो आप जख्मी भी हो सकते हैं। सो नर्वस सिस्टम का टाइमली रिस्पांस जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइमली रिस्पांस जनरेट करने के लिए मैसेजेस की फास्ट कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइलिन शीट के थ्रू ये पर्पस बहुत ईजीली सर्व हो सकता है। ये तो बेसिक फंक्शन था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का। आपने देखा कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मेजर पार्ट है सेल बॉडी और इसका फंक्शन क्या है कि ये आने वाले मैसेजेस को प्रोसेस करती है। डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी। डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं कि ये डेंड्राइट्स एक्चुअली रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द अदर सेल्स। देन कम्स द एक्सॉन। एक्सॉन इज ऑल्सो द एक्सटेंशन of cell body. Axon is to transfer the incoming message to axon terminals. Then come the axon terminals. These axon terminals are actually to transfer the message to next neuron cell. The axon is covered with myelin sheath. Myelin sheath is the protective sheath that protect the messages as well as speed up the message. अब हम ये देखते हैं कि मैसेज ट्रांसफर कैसे होता है। यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ही इसके टर्मिनल्स एंड होते हैं, एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। वो डेंड्राइट्स यहाँ से आने वाला मैसेज रिसीव करते हैं। इस पिक्चर में आप वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि ये न्यूरॉन 1 है और ये सेकेंड न्यूरॉन है, सेकेंड सेल है न्यूरॉन का। अब यहाँ पे सेल बॉडी के ये डेंड्राइट्स रिसीविंग है, ये रिसीविंग, रिसीविंग न्यूरॉन है जिसने मैसेज नेक्स्ट रिसीव करना है, और ये डोनेटिंग सेल है जिसने मैसेज को ट्रांसफ़र करना है। ये सेकंड सेल के आप देख सकते हैं कि एक्सॉन, ये इसका एक्सॉन था और ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स है। एक्सॉन टर्मिनल्स अटैच हैं पहले सेल के डेंड्राइट्स के साथ। अब जहाँ पे ये दोनों सेल्स कनेक्टेड हैं, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। यहाँ से मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है। मैसेज, अब यहाँ से जो मैसेज आ रहा है वो दो तरह का हो सकता है, या तो ये आयंस हो सकते हैं या फिर ये केमिकल्स हो सकते हैं। अगर ये आयंस की फॉर्म में मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है। और अगर ये किसी केमिकल की, किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ये केमिकल सिग्नल है। दोनों तरह के मैसेजेस न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं।
केमिकल फॉर्म में भी और इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी। तो जहां से ये एक न्यूरॉन का के एक्सॉन टर्मिनल्स दूसरे के डेंड्राइट्स के साथ अटैच होते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्टिक गैप। ये गैप, ये प्लेस, ये असल में साइनेप्टिक गैप कहलाता है। और ये प्रोसेस जो मैसेज ट्रांसफर का है, इधर इन द फॉर्म ऑफ आयंस और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, इज कॉल्ड साइनेप्स। ये एक और रिप्रेजेंटेशन है जो बता रही है कि सिनेप्टिक गैप में कैसे मैसेज ट्रांसफर किया जाता है। अगेन इट इज द साइनेप्टिक गैप। आप देख सकते हैं कि यहां से मैसेज, ये डोनेटिंग न्यूरॉन सेल के एक्सॉन टर्मिनल था, जहां से मैसेज सेंड किया जाएगा टू अदर सेल। ये इट इज द सेकंड सेल एंड द डेंड्राइट ऑफ सेकंड सेल जो मैसेज को रिसीव करेगा। यहां से आप देख रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस यहां पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, और इस गैप को कहा जाता है, इट इज द साइनेप्टिक गैप एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्स। It may be in the form of electric signal if the messages are conveyed in the form of ions, or it may be a chemical signal if the messages conveyed are in the form of molecules. So these are the two ways of communication between two neurons. अब हम अपने टेक्स्ट बुक के पेज पे वापस आते हैं, जो कि पेज 8 है। स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से हमने पूरी डायग्राम भी डिस्कस कर ली। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स कितनी तरह के होते हैं और हर एक का फंक्शन क्या है। तो अपनी किताब पे पेज 8 की डायग्राम 1.5 को गौर से देखिए। 1.5 का ए पार्ट है सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 मेजर टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। हर एक का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हम स्टेप बाय स्टेप इनको स्टडी करेंगे। अब अपनी बुक में फिगर 1.5 को गौर से देखिए। इसमें सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स में आप देख सकते हैं कि सेल बॉडी किस साइड पे प्रेजेंट है। इट इज द यूनिपोलर न्यूरॉन। इसे यूनिपोलर इसलिए कहा जाता है कि सेल बॉडी के साथ सिर्फ एक ही तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी सेल बॉडी से सिर्फ एक्सॉन सी के साथ एक्सॉन सी अटैच है। इसमें भी डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन टर्मिनल्स है। डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करके सेल बॉडी को ट्रांसफर करते हैं, सेल बॉडी आगे से एक्सॉन टर्मिनल्स को मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं हमारी मसल्स के साथ और या किसी भी दूसरे सेल्स के साथ। वहां से ये मैसेज रिसीव करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का पर्पस है टू रिसीव मैसेजेस, सिग्नल, स्टिमुलस और मैसेज। और ये किस तरह क्यों रिसीव करेंगे, क्योंकि ये मसल्स के साथ या किसी भी दूसरे सेल्स के साथ इनके डेंड्राइट्स अटैच होते हैं जो कि इजीली मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। सो इट इज अ सेंसरी न्यूरॉन that receive the message from any body part. Next come the interneurons. Number B, figure 1.5 में number B देखिए, interneuron. Inter मतलब between, interneuron यानी ऐसे न्यूरॉन जो इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। अब इन बिटवीन प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि ये ब्रेन में प्रेजेंट है। इनका काम 2 वे है, इन्हें बाइपोलर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स यूनिपोलर थे, ये बाइपोलर थे क्योंकि इनके साथ 2 तरह के एक्सटेंशन अटैच है। आप देख सकते हैं कि सेल बॉडी की एक साइड से डेंड्राइट अटैच और दूसरी साइड से एक्सॉन अटैच है। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो जिससे सेल बॉडी से 2 तरह की एक्सटेंशंस हो, उन्हें बाइपोलर न्यूरॉन्स कहा जाता है और ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। इनका काम क्या है कि ये create a link
बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स यानी स्टिमुलस रिसीव करने वाले न्यूरॉन्स में, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इधर मोटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरन्यूरॉन्स. Next comes the motor neuron, which is the third type of neurons. These neurons are receive the message from interneuron that are present in the brain and transfer the message to the effector muscle. Effector muscle is the muscle that are to generate the response. यहाँ पे कोई भी सिग्नल सेंसरी प्रोड्यूस हुआ, लेट्स सपोज के फिंगर में कुछ नीडल प्रिक की, पेन का सिग्नल जनरेट हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने वो सिग्नल रिसीव किया, उसे इंटर न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र किया. इंटर न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन में प्रेजेंट थे उन्होंने इसको एनालाइज किया, प्रोसेस किया, रिस्पॉन्स जनरेट किया. जो भी रिजल्ट था, जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए था, वो मैसेज कन्वे किया गया मोटर न्यूरॉन्स को. मोटर न्यूरॉन्स ने ये मैसेज आगे से मसल्स को या किसी भी ऐसे बॉडी पार्ट को ट्रांसफर किया जिसने रिस्पॉन्स जनरेट करना था. मोटर न्यूरॉन्स आर अटैच्ड टू द ऑर्गन्स, आर अटैच्ड टू द सेल्स, आर अटैच्ड टू द मसल्स दैट आर सपोज्ड टू रिस्पॉन्स टू जनरेट द रिस्पॉन्स. नीडल प्रिक करने की सूरत में रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि हाथ फौरन से पीछे हटा लिया जाए या स्किन से वो नीडल निकाल ली जाए. ये तीनों तरह के न्यूरॉन्स इस सीक्वेंस में काम करते हैं. मोटर न्यूरॉन में आप देख सकते हैं कि सेल बॉडी के बिल्कुल साथ ही डेंड्राइट्स प्रेजेंट है ताकि ये फ़ौरन से मैसेज रिसीव कर सकें. यहाँ से इनके एक्सॉन टर्मिनल से मैसेज इनके डेंड्राइट्स को जाएगा, फ़ौरन से इसका सेल बॉडी इसको स्टडी करेगी, प्रोसेस या एनालाइज करेगी, एक्सॉन में ट्रांसफ़र होगा और एक्सॉन टर्मिनल्स जो कि किसी मसल के साथ, किसी भी ऑर्गन के साथ या किसी भी सेल के साथ अटैच हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा और फ़ौरन से रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा. इन तीनों फिगर्स को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक आपको दो पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं. इन पैरेलल लाइंस का मतलब ये है कि ये एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है, लेकिन अपनी पिक्चर के साइज़ के मुताबिक या अपनी इजीनेस के लिए हमने इसको दरमियान से कट करके, पिक्चर में सिर्फ कट करके आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है. तो ये पैरेलल लाइंस जहाँ भी आप दिखाई देंगी, इसका ये मतलब है कि ये इसकी एक्सटेंशन सिर्फ इतनी सी नहीं है बल्कि ये आगे भी प्रोसीड कर रहा है और इसके कहीं एंड पे जाके एक्सॉन टर्मिनल्स होगा. ये पैरेलल लाइंस इस एक्सॉन की लेंथ को शो कर रही है कि एक्सॉन एक लॉन्ग टर्मिनल है, जिसे अपनी ईज़ के लिए हमने कट शॉर्ट कर दिया है. Thank you very much.